ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 39.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। क्रिप्टो करेंसी की कमाई उपर 30% टैक्स। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक ते आधारित होगी। डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा। NPH सूबा सरकार के कर्मचारियों को छूट वधाई गई। NPH कर्मचारियों के 14% योगदान ते टैक्स की छूट। सहकारी समितियों का टैक्स घटा के 15% किया। कारपोरेट टैक्स नूं घटा के 15% किया। दिव्यांग लोगों लई टैक्स च छूट दी जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ते हुण 15% टैक्स। नवे स्टार्टअप लई टैक्स च छूट नूं 1 साल वधाया। जेकर गल किसानां दी कीती जावे तां किसानां नूं डिजिटल सेवा लई PPP मॉडल। PPP मोड च नवीं योजनावां शुरू होणगीਆਂ। ऑर्गेनिक खेती लई जोर दिता जावेगा। साल 2023 ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2021-22 'ਚ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ MSP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। जेकर गल सिक्ख्या खेत्र की कीती जावे, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 200 विद्या TV चैनल खुलणगे। 1 क्लास 1 TV चैनल नाल पढ़ेगा विद्यार्थी। 12वीं तक बच्चे खेतरी भाषा च विद्या लै सकते। 2 लाख आंगनवाड़ियां नूं मॉडर्न बनाया जाएगा। इसी तरह जेकर गल रोजगार के खेत्र च की जाए, 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत तहत। 60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया तहत। कौशल विकास प्रोग्राम नवे सिरे तो शुरू होणगे। जेकर गल सेहत खेत्र की की जाए, कोरोना च दिमागी सेहत ते असर उत्ते ध्यान। टेलीमेंटल हैल्थ प्रोग्राम नाल मदद मिलेगी। नैशनल डिजिटल हैल्थ मिशन लॉन्च होवेगा। बैंकिंग अते बीमा के खेत्र च 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ च डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले जाणगे। 1.5 ਲੱਖ डाकघरां च कोर बैंकिंग सेवावां मिलणगीਆਂ। जेकर गल रेलवे की कीती जावे तां अगले 3 साल च 400 नवीं वंदे भारत ट्रेनां की शुरुआत। रेलवे ते डाक विभाग च बेहतर तालमेल किया जाएगा।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਰੇਲਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਚਿਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 2022-23 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਜੁੱਤੇ, ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਛਤਰੀਆਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ LED ਲਾਈਟਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। 80 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 3.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 750 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 ਚ 5G ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 25% ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ 9.2% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। 100 PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਆਵੇਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ। MSME ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ 'ਚ
6,000 करोड़ रुपए। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ LIC ਦਾ IPO ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ IT ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ बजट भरिया होया है। PM मोदी ने कहा कि बजट का हर खेत्र में स्वागत होया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो। बजट पेश करने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का ध्यान रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा
इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝਟਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे, महामारी की वजह से, वहाँ पर भी कुछ राहत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इससे उदासीनता बढ़ेगी। हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है देश की। अब 31 मार्च 2022 में हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम 31 मार्च 2020 को थे। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਆਮ ਖਾਸ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। CII ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। जो बजट है आज का, कैसे देख रहे हैं आपको? इंडस्ट्री विज़ लोग जो हैं बेसिकली कि कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने जो लोगों वाली बात करी है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले हम लोग को यही कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर गवर्नमेंट एम्फेसिस देती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है अपने लेके, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। नॉट ओनली इंडस्ट्री पर द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो सबको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का लेके। क्योंकि हमारी जनरेशन के अलावा जो आगे आने वाली जनरेशन है, इस चीज़ को देख के यहाँ पे रह के काम करना चाहेगी, जो कि बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। क्योंकि यंगर जनरेशन जो पढ़ लिख जाते हैं और जो अपना वो सक्षम समझो, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, वो अपनी कंट्री में ना रह के बाहर जाके ज़्यादा इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो जब वो माहौल यहाँ बनेगा तो मेरा ख्याल से इन्वेस्टमेंट जो करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कीपिंग इन व्यू द नेक्स्ट 25 ईयर्स। CII ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मनीष जी, एक तो 9.2% का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है, एक तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कितना रियलिस्टिक है? और MSME सेक्टर के लिए कुछ इस बजट में क्या क्या प्रोविजंस है? आपको लगता है जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सफिशिएंट है MSME सेक्टर के? देखिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो प्रॉपरली MSME के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, बट सेक्टर वाइज कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं जो MSME को लेकर ही शायद सोची गई हैं। पहला हम उसमें बात करेंगे डिफेंस आउटले को। डिफेंस के अंदर 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्टार्टअप के लिए और यहाँ की लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। साथ ही अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा था, तो सरकार ने अपने R&D फंड से 25% एलोकेशन किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्टार्टअप और अपने सर्टिफिकेशंस के लिए। अगर इसको हम ध्यान में रखें तो MSME डिफेंस में बहुत आगे बढ़ सकती है। पहली बात, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंड, हम सेक्टर लेते हैं ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर में एक ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़नी चाहिए।
और यही इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल को ग्रोथ देगी ग्रीन एनर्जी जाने के लिए। साथ ही एक बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी लाने की बात की गई है। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये है, बट अगर ये पॉलिसी लाके इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कर लेते हैं तो ईवी पॉलिसी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। जो टैक्स स्लैब थी वो एज इट इज़ प्रीवियस साल की तरह बिल्कुल सेम थी। जैसे कि ड्यू टू कोविड एक्सपेक्टेशन थी कि जनरल पब्लिक की थोड़ी टैक्स स्लैब इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो उन्होंने बिल्कुल सेम रखी है। बस उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम दिया बेसिकली बजट के अंदर और कैपिटल करेंसीज पे लगाया। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन था वो सारा उन्होंने वो एज इट इज़ रखा है। वो चाहते तो थोड़ा लॉन्ग टर्म को थोड़ा कम कर सकते थे कैपिटल गेन को। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी मिला। जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया। लाइक अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी जो मिडिल क्लास के हिसाब से, या वैसे भी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। जो सोचा था कि शायद स्लैब बढ़ जाएगी कि टैक्स वैक्स ही कुछ हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो है। बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से महंगाई तो कम नहीं होगी ना। आप पहले उन चीज़ों को तो कम कर लो जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं डेली नीड्स के लिए, रोज़ की नीड्स के लिए, वो ज़रूरी है पहले। अगर वो ठीक नहीं होंगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा फिर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या लगता है आपको बजट? सर अभी क्या इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, कुछ भी नहीं होगी। अगर आप खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या लेबर क्लास की जाएगी ना, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। दिल्ली के लोग मिडिल क्लास पे ज़्यादा बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो कुछ सोचा ही नहीं ना सरकार ने। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कहाँ जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਤੁਸੀਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।